الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واسع کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، یا حقیقت یہ ہے کہ انہیں اکثر بے ایمان ہیں۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شہر رمضان میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست بلال قریشی، اور قاری رفعت عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہی آپ سے ہوا تھا، تو آپ بہت محترم ہیں ہمارے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی پاکستان میں، پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ خیریت سے ہوں. اور بہت پیارے پیارے بچے الف اسلام کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ہمارے استاد محترم بھی آ رہے ہیں. تو آج بھی ہم بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جناب ہمارا یہ شہر رمضان جو آپ کے سامنے سجایا ہے، میں آپ کو بتا دوں ہمارے جو مین اسپانسرز ہیں نیسلے سیریلیک، نیسلے نیڈو، موبلنک، کوکا کولا، کرشی جامع شری، روز پیٹل. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی کوشش ہے کہ ایک اچھی سی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کریں. اور بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں اور آج میں اس لیے بہت خوش ہوں کیونکہ میرے بیٹے کی پہلی سالگرہ ہے. تو آپ سب جو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، آپ سے یہی کہوں گا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، اس کی زندگی اچھی کرے، اسے ایک اچھا انسان بنائے. آمین ثم آمین. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی شہر رمضان میں. دیکھتے رہیں سٹی 42. لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں. باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222. تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سٹی رپورٹر. خبریں، تقریریں اور باتیں، ہنسنا کھیلنا، ملنا جلنا، آنا جانا، رنگ برنگے لمحے، گیت، گھٹائیں، برساتیں، نہر کنارہ، راوی کا پل، مال، مساجد، محل مینارے، درویشوں کی رونق، کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں، شہر کہانی، آتے جاتے قصے، گلیاں، باتیں کرتے دن اور راتیں، سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے. ہم اس کی آواز ہیں، اس کی خوشبو ہیں. یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42. لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر. برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز. سیاسی سرگرمیاں ہو یا بیوروکریسی کا احوال، حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں، ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر. ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام، ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی. ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال. ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی. ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ. ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر. ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم. ہم ہیں سٹی 42. ہم ہیں لاہور. جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے، جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن. کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر.
ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए इसका। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाले घराना है नस्ल करीमों की लजपाले घराना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से ही मर जाएं क्यों ना नामे मोहम्मद पर
عزت سے ہی مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت یہ کہہ کے در حق سے لی موت سے کچھ مہلت کہ میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے
लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है
तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको शहर रमज़ान में एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। सिटी 42 की स्पेशल लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन, और ये सेगमेंट है हमारा अलिफ इस्लाम, जिसमें हम करते हैं आपको बहुत प्यार भरा सलाम। और ये प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बैकग्राउंड पर, मेजर सजाद हैदर शहीद सितारे बसालत। मैं चाहूँगा एक बार सारे बच्चे भी खड़े हो जाएं और आप लोग भी सारे खड़े हो जाएं और इस शहीद को एक सल्यूट पेश करेंगे हम सब मिलकर। जनाब, शहीद की मोहब्बत, शहीद का एहतराम, शहीद की जो रिस्पेक्ट हमारे दिल में है वो हमेशा है और हमेशा रहेगी, और शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और उसका एक सबूत आप देख रहे हैं कि आज वो हमारे बीच हमारे साथ हैं और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं इनकी अज़मतों को, इनकी शहादत को। बहुत शुक्रिया बच्चों, तशरीफ़ रखें। और इनके बेटे हैं आप, आपका नाम बताएं। फरसान हैदर। और आपका नाम? हसन हैदर। हसन हैदर। और आपको पता है कि आप कितने अजीम इंसान के बेटे हैं? आपको पता है इस बात का? हम आपके बाबा से उनका जितना शुक्रिया अदा करें जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान दी है, जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। एक मरतबा तालियां बजाएं जी, उनके बच्चे भी यहाँ पर आए हैं आज हमारे साथ। और माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह आपके बाबा खूबसूरत लग रहे हैं यूनिफॉर्म में, उस तरह आप दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या आज आप तैयारी करके आए हैं? क्या सुनाएंगे? कुछ तैयार याद करके आए हो बेटा? बिस्मिल्लाह। सारे गौर से सुनेंगे, चुप करके चलें जी। काश मैं दो पैगंबर में उठाया आ जाता, काश मैं दो पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, 7 गज़वात के शामिल होता, 7 सरकार के गज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت 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 خوبصورت آپ نے پڑھا. ہمارے استاد محترم مولانا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب تشریف لائیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور ہمارے آج کے بچے سارے خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بچے سب ٹھیک ہیں جی. 26واں روزہ اور تقریباً 26 ہی بچے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، یہ اچھی بات ہے. انہی کے دم سے رونق ہے جی شہر رمضان کی. سر آج جیسے کہ ابھی ہم نے سلیوٹ بھی پیش کیا، خراج تحسین بھی پیش کیا ایک شہید کو، اور ماشاءاللہ 2 خوبصورت بیٹے ان کے آئے ہیں جناب میجر سجاد حیدر شہید کے ستارے بصالت. تو میں چاہوں گا کہ آج کیوں نہ ہم شہادت کے اوپر بھی بات کریں، شہید کے جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اس پر بھی بات کریں. اب 2 باتیں ہمیں کرنا ہوں گی. ایک یہی شہادت کے حوالے سے، اور دوسری بات ہمیں کرنا ہوگی جو آج کی رات کی سگنیفیکینس ہے. جی بالکل، جو آج کی رات کی اہمیت ہے، 27ویں رات کی اہمیت ہے. اور پھر تیسری بات جو اس 27ویں رات کے ساتھ ایفیلیٹ ہے وہ ہے پاکستان کا قیام. جی جی بالکل. پاکستان اپنے قیام میں، پاکستان کا جو قیام عمل ہوا وہ اسی 27ویں رات کا ہوا، اور رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی جب پاکستان معرض وجود میں آیا. تو ہم بات کرتے ہیں شہادت کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ وہ سپوت قابل فخر ہیں دھرتی کے کہ جنہوں نے دھرتی کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سرحدوں کے اوپر پیش کیا، یا پھر سول اداروں کے اندر رہتے ہوئے قوم و ملک کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ انہوں نے جان آفرین کو پیش کر دیا. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شہید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا جائے گا تو ایک پھر وہاں پہ التجا اور آرزو کرے گا، اے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی عطا ہو، دوبارہ زندگی ملے، اور میں پھر تیری خاطر زمین پہ جاؤں اور تیرے نام کے لیے اور تیری خاطر جہاد کروں، اور پھر دوبارہ میں شہید کیا جاؤں، اور میں پھر دوبارہ مجھے زندگی ملے. یعنی وہ بار بار اس بات کی التجا اور آرزو کرے گا کہ میں اس شہادت کے عمل سے بار بار گزروں. تو جو شہادت کی عمل میں سے گزرنا ہے، جو ایک دفعہ گزر جاتا ہے پھر وہ امر ہو جاتا ہے. اور میں نے پہلے بھی اسی ہی پروگرام میں عرض کیا کہ جو شہید کی روحیں جب جنت میں جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سبز پرندوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور پرندوں کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ پوری جنت تمہارے لیے آزاد ہے، اوپن ہے، تم جہاں پر جانا چاہو وہاں پہ تم جا سکتے ہو، جو چیز تم کھانا چاہو تم کھا سکتے ہو. جب وہ روحیں اپنا اس مقام و مرتبے کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں یا ان کے وجود میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، اے پروردگار انہیں بھی ہمارے اس انعام کے اوپر اطلاع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ہمیں یہ جو انعام ملا ہے انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہمیں کتنا بڑا انعام ملا ہے. پھر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بل احیاء، یہ جو شہید ہیں یہ کیا ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو، یہ تو زندہ ہیں. 2 جگہ پہ آتا ہے، ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. اور جو شہید ہے اپنے رتبے کے اعتبار سے، اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اگر کیٹیگری کریں انسانوں کی تو اول درجے کے اوپر انبیاء آتے ہیں، اور دوسرے درجے کے اوپر آتے ہیں صدیقین، اور تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں شہید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ہیرا کے پہاڑ کے اوپر چڑھے تو ہیرا کا پہاڑ لرزنے لگا. آپ نے ٹھوکر مار کے کہا اے ہیرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے اوپر اس وقت نبی ہے، صدیق ہے اور شہداء ہیں. اور شہداء میں کون کون تھے؟ حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت زبیر بن عوام تھے، حضرت ابو عبیدہ جراح تھے. یعنی یہ سارے کے سارے وہ تھے جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے. تو یہ وہ کیٹیگری ایک ترتیب بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مقام و مرتبہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے، دوسرا مقام و مرتبہ جو ہے وہ صدیقین کا آتا ہے، اور تیسرا شہداء کا آتا ہے. اور آج کی رات، جی آج کی رات کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں. امپورٹنٹ بات ہے اور بہت ہی اہمیت رکھتی ہے یہ رات عبادت کے لحاظ سے بھی، اور پاکستان بھی وجود میں آیا. اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 27ویں کی رات ہوگی، لیکن آج کی رات ہمیں بالکل لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد شہر رمضان میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں سٹی 42. لاہور
लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर
अलिफ इस्लाम, आप सबको हमारा प्यार भरा सलाम। सिटी 42 की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन शहर रमज़ान में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। बहुत से प्यारे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना डॉक्टर राग़िब नईमी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। और आज की रात बहुत अहम रात है। जी हाँ, आज जैसे कि आप सब जानते हैं 27वीं की रात है। 26वां रोज़ा जो है मगरिब के वक्त अफ्तारी के वक्त अख्ताम, और उसके बाद 27वीं की रात शुरू हो जाएगी। तो सर मैं चाहूँगा मुझे, हम सब बच्चों को और सब देखने और सुनने वालों को 27वीं रात की अहमियत बताइए। हम ना पहले बच्चों से पूछेंगे कि 27वीं रात को होता क्या है। किसी को पता है क्या होता है 27? दे दो। जी जी बेटा बताइए, जल्दी से बताएं, शाबाश। 27 रमजान को शब कदर होती है। 27 रमजान को शब कदर होती है, ठीक हो गया। और क्या मस्जिदों में क्या होता है? और क्या बताएंगे? किसी को पता है? मस्जिदों में भी कुछ होता है, आपको पता है? बताएं। मस्जिदों में अमाल होते हैं। नमाज होती है, नमाज तो अमाल होते हैं। अमाल होते हैं, अमाल होते हैं, अच्छे अमाल। तरावी पे लोग बैठे होते हैं ना। और कोई आप में से कोई 27वीं रात को गया है मस्जिद में? आप गए? क्या होता है मस्जिद में जाके फिर? माइक में बेटा, माइक में बोलिए। मस्जिद में महफिल होती है। जी, मस्जिद में महफिल होती है। और बिलाल भाई आपको पता है महफिल क्या होती है? वो होती है महफिल अजमत कुरान। कुरान की अजमत के बारे में महफिल होती है। और महफिल क्यों होती है? महफिल इसलिए होती है कि तरावी की नमाज में 20, 25, 27 दिनों में कुरान करीम की मुकम्मल तलावत की जाती है जमात की सूरत में, और सारे नमाजी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, कुरान करीम को सुनते हैं, और फिर खुशी का इजहार होता है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता की है कि हमने तरावी की नमाज में पूरे कुरान करीम की समाअत की, सुना। और कुरान करीम की समाअत करना खुद एक बहुत बड़ा सवाब का काम है, पढ़ना भी सवाब का काम है, कुरान करीम को सुनना भी सवाब का काम है। और बच्चों ज़रा जहन में रखो, जब कुरान करीम की तिलावत होती है, अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि कुरान करीम की तिलावत को गौर से सुना जाए, आपस में बातें ना करें। जब भी तिलावत हो तो तिलावत गौर से सुने। तो नमाज में, तरावी की नमाज में तिलावत की जाती है कुरान करीम की, देख के करते ज़बानी करते हैं? किसी को पता है कैसे? हाँ, ज़ुबानी करते हैं। पक्की बात है, पक्की बात है जी, ज़बानी करते हैं, देख के नहीं पढ़ते। वहाँ पे जो कारी साहब होते हैं वो कुरान करीम को ज़बानी पढ़ते हैं और फिर बाकी तमाम उसको सुनते हैं। और 27वीं रात में कुरान करीम का ख़त्म किया जाता है। यानी ख़त्म का मतलब ये होता है कि पूरा कुरान करीम मुकम्मल हो गया। फिर एक महफिल की जाती है खुशी में कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हमने कुरान करीम की समाअत की है, और उसकी खुशी में फिर महफिल होती है, तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं लोगों को, और कारी साहब को दिए जाते हैं, और फिर मिठाई तकसीम की जाती है। आखिर में खुशी में मिठाई तकसीम की जाती है। और फिर उसी रात में 27वीं की रात को मस्जिदों के अंदर तस्बीह की नमाज अदा की जाती है, बड़ी अहम नमाज है। और उसके बाद कुरान करीम की अज़मत बयान की जाती है, कुरान करीम नाजिल करने का मकसद बयान किया जाता है, और फिर सबसे अहम चीज़ ये शब कदर की फजीलत बयान की जाती है, ताकि लोग मुतवज्जे हों और इस रात को ज़ाया ना करें, इस रात को पाने की कोशिश करें। और बच्चों, आपको तो पता ही होगा, जिसको पता है वो बताएगा कि शब कदर किस रात को होती है, रमज़ान मुबारक की किस रात को शब कदर होती है? कौन बताएगा? इधर बच्चे से ही पूछ लेंगे बाद में। जी बताओ। 27वीं रात को नहीं, 27वीं रात को नहीं होती है। बच्चे आप बताएं। माइक दो बेटा, माइक दो। हाँ, एक मिनट बेटा, ये लो, बताओ बेटा, आप बताएं। 27वीं रात 27वीं रात को होती है। आपने 27वीं रात को कहा, मैं कहता हूँ 27वीं रात को नहीं होती है। मैं जवाब दूं? नहीं, आप तो आप और मैं एक ही बात है ना। नहीं सर, मैं तो... हाँ जी, कोई और बताएगा? बताएं। 26वीं रात को नहीं, आप बताएं। आप बताएं। ये 21वीं रात को भी हो सकती है, 22वीं रात को भी हो सकती है, 21 के बाद 23वीं, 21 के बाद 23वीं रात को भी हो सकती है, और 25वीं रात को भी हो सकती है, और 27वीं रात और फिर 29। अच्छा, 31वीं रात को हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? बताइए। बिल्कुल ठीक है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बहुत इजी है, बताएं। शाबाश। नहीं बता, किसको पता है 31वीं रात क्यों नहीं हो सकती? कौन जवाब देगा? जो सही जवाब देगा उसको हम गिफ्ट देंगे, जबरदस्त सा। 31वीं रात क्यों नहीं हो सकती? कौन बताएगा? क्योंकि सिर्फ 30 रोजे होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बजाएं जिस बच्चे रमजान के लिए। महीने के, क्योंकि 29 या 30 रमजान के महीने के या 29 रोजे होते हैं या 30 होते हैं। वेरी गुड। 31 रात उस वक्त है कि जब 31वां रोजा होगा। 31वां रोजा तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा है, मैं नॉर्वे में था और पहला रोज़ा वहाँ पे हो गया था। मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो रोज़ा रखना शुरू कर दिए। अगर 30 रोज़े होते
تو میرا آخری روزہ 31واں ہوتا، لیکن وہ تو کسی کسی کے لیے ہے نا. اکثر کیا ہے 30 روزے ہیں میکسیمم، 29 ہے اور 30 روزے، اس لیے 31 رات ہو ہی نہیں سکتی. اب بیٹے نے بہت اچھی بات کی ہے، 21 23 25 27 29 یہ جو 5 راتیں ہیں انہیں کہتے ہیں طاق راتیں، آخری عشرے کی طاق راتیں. رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات قدر کی رات ہوتی ہے. ہمارے ہاں مشہور کیا ہے 27ویں رات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے 27ویں میں کر لے ہو جائے، یا 29ویں کر لے، یا 25ویں کر لے، یا 21ویں کر لے، یا 23ویں کر لے. تو ہمیں صرف 27ویں رات کو عبادت نہیں کرنی ہے، ہمیں 5 راتوں میں عبادت 5 راتوں میں ليلۃ القدر تلاش کرنی. جی تلاش کرنی. بالکل ٹھیک ہے جی سر. یہ بچہ جو ہے نعت پڑھنا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں. اور بیٹا آپ صحیح طرح بیٹھ جاؤ. چلو اس کو نا اس کی ماما کے پاس بھیج دیں. چلو اس کو ماما کے پاس چھوڑو. اگر یہ تنگ کر رہی ہے تو چلیں بیٹا نعت. چلو. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جلدی سے آپ بھی پڑھیں. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و ثنا. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، جس نے آ کے سوارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بیٹا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا. بے قصور سے ہیں جنہیں پیار وہیں آئے ہیں، بے قصور سے ہیں جنہیں پیار وہیں آئے ہیں، جو دو عالم کے ہیں غم خوار وہیں آئے ہیں. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ. ایک اور بیٹی کون کس نے پڑھنا تھا یہاں پہ؟ جلدی سے، بالکل ٹائم کم. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
give my baby the best for his development. लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बलदियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम
इख्तियारात का मंबा है राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते हैं। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। सलाम लाहौर, आप देख रहे हैं सिटी 42, शहर की सब बातों के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। हेडलाइन शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं, ये लाहौर है और हम हैं। वासा फ्रांस हुकूमत के रूटे हुए प्रोजेक्ट वापस लाने में कामयाब। वासा और फ्रेंच हुक्काम के दरमियान तमाम ज़ेर इल्तबा तनाज़ात हल। फ्रांस का साफ पानी मनसूबों में सरमायाकारी पर आमादगी का इजहार। एमडी वासा के मुताबिक फ्रेंच प्रोजेक्ट में 25 अरब से ज़ायद सरमायाकारी होगी। मीठी ईद का मजा किरकिरा करने के लिए जालसाज माफिया सरगर्म। फूड अथॉरिटी ने बहादत रोड पर नाकिस मिठाइयाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी। अरेबियन डिलाइट से नामी फैक्ट्री से 6 मन मुज़र सेहत मिठाई बरामद करके तल्फ कर दी गई। और सिटी 42 की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, शहर रमज़ान का सिलसिला जारी। प्रोग्राम अलिफ इस्लाम में बच्चों की भरपूर शिरकत। अब तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए सिटी 42। खुद से बोलूं, एक मुझे पता है, ये तो ये है ना किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे।
जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसां, हामिए बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले। दुख दर्द अलम सब कटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं। मदीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले। दस्ते साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर। जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली
اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا ہو حبیب حزین پر بھی آقا نظر ہو حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنہ اور آقے ہستی بکھر جائیں گے تاجدار حرم لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی دفتری معاملات میں گڑبڑ کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335424222 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سٹی رپورٹر خبریں تقریریں اور باتیں ہنسنا کھیلنا ملنا جلنا آنا جانا رنگ برنگے لمحے گیت گھٹائیں برساتیں نہر کنارہ راوی کا پل مال مساجد محل مینارے درویشوں کی رونق کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں شہر کہانی آتے جاتے قصے گلیاں باتیں کرتے دن اور راتیں سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے ہم اس کی آواز ہیں اس کی خوشبو ہیں یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42 لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم ہیں سٹی 42 ہم ہیں لاہور جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے
बॉडी। आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है राइवेड, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा, तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट। शहर रमज़ान में एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आज खैर से 26वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 माह रमज़ान बहुत ही खैर बरकत और आसानी से गुजरा और बाकी के चंद रोज़े जो हैं अल्लाह पाक आसानी फरमाए। और बेशक अल्लाह पाक आसानी ही फरमाता है, हम बंदे बंदे के साथ आसानी नहीं करते। बस ये अगर हमने इस रमज़ान में कुछ सीखा है तो प्लीज़ पूरा साल कोशिश करें, बल्कि पूरी ज़िंदगी कोशिश करेंगे जो तालीमात हमने हासिल की हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार लें, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और कामयाब हो जाएगी। जनाब महबूब हमदानी साहब ने बहुत खूबसूरत ताजदार हरम पेश किया जनाब, और हम सब ने बहुत ही और बहुत मज़ा आया। और जनाब बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियात हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। मैं तारुफ़ करवा देता हूँ जी। मौलाना डॉक्टर राग़िब नईमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा अब्दुल शकूर हक्कानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, सर खुश आमदीद कहते हैं आपको। अल्लामा एजाज़ हुसैन हैदरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह जी, बहुत प्यारी लाइव ऑडियंस भी मौजूद है यहाँ पर, और टीवी पे बैठे बैठे जितने लोग लाहौर, पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं जी। मौलाना साहब, सबसे पहले सवाल ये है कि जी लैलतुल क़दर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या तफसील बताएं ज़रा हमें लैलतुल क़दर की। देखिए, जो लैलतुल क़दर है अपने क़दर के माने के एतबार से इसकी 3 तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। क़दर का एक माना होता है तंगी, जगह का तंग पड़ जाना। लैलतुल क़दर का मतलब है वो रात जिसमें जगह तंग पड़ गई है। जगह तंग क्यों पड़ती है? इसी सूरह कदर में अल्लाह ताला फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। आसमान से फरिश्ते और रूहुल अमीन उतरते हैं रूए ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला के मामलात के लिए, और सलामती वाली ये रात है तुलुए फजर तक। तो इतनी तादाद में उतरते हैं कि रूए ज़मीन उनके लिए तंग पड़ जाती है, तो कहा गया कि ये तंगी वाली रात है। कदर का एक माना है अज़्मो, शर्फ, बुलंदी, रुतबा, बुज़ुर्गी। तो ये रात जो है अपनी बुज़ुर्गी के एतबार से अल्लाह ताला के यहाँ कदर वाली रात है, अपने जो हकीकी माना है उसके मुताबिक। माना किया जाता है अंदाज़ा लगाना। अल्लाह ताला इस रात में एक कौल के मुताबिक ये भी है कि आइंदा के फ़ैसलों का अंदाज़ा फरमाता है जो उसने फ़ैसले करने होते हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो इस रात में ख़ास तौर पे 2 माना, एक अज़मत, शर्फ, बुज़ुर्गी का माना और दूसरा तंगी वाला माना, ये इस रात के अंदर बेआइनी ही वैसे ही पाया जाता है। और फिर अज़्म व शर्फ वाली बात करें तो कमाल देखिए, अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी अज़्म व शर्फ वाली किताब जो कुरान करीम है, सबसे ज़्यादा अज़्म शर्फ वाले पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, सबसे ज़्यादा अज़्म शर्फ वाली उम्मत जिसे उम्मत मोहम्मदी कहा जाता है, उनकी हदायत और रहनुमाई के लिए। तो ये एतबार बड़ा अहम है कि
इज़्ज़त व शर्फ वाली किताब, इज़्ज़त व शर्फ वाले नबी पर उतारी गई कि वो इज़्ज़त व शर्फ वाली उम्मत की रहनुमाई और हदायत का फरीज़ा सर अंजाम दे सके। और फिर ये कौल भी कहा जाता है, किया जाता है कि ये रात कदर वाली रात इसलिए है कि कुरान करीम का नुज़ूल इस रात में हुआ, और ये कौल भी है कि ये रात ही अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी मंजिलत वाली थी कि अल्लाह ताला ने इसमें कुरान करीम को नाजिल किया। तो ये एक दूसरे के लिए ततीमा का फ़ायदा दे रहे हैं, एक दूसरे से ये रात यानी कुरान करीम का नुज़ूल और इस रात की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी रमज़ान का आखिरी अशरा आता, ना सिर्फ आप मुस्तैद हो जाते इबादत इलाहिया पे, बल्कि आप अपने घर वालों को भी मुस्तैद कर देते और उनको हदायत जारी कर देते कि अब अपनी कमरे कस लें और अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, और उन्हें रातों को जगाते। और ख़ास तौर पे कदर की रात को पाने के लिए आखिरी अशरे की ताक रातों में जागते। अब जहाँ तक बात रही है कि कदर की रात कौन सी रात है, 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है या 29वीं है, ये अल्लाह ताला की मंशा पर है। उलमा ने क़यास ये किया है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस बात को बयान किया है कि बिलउमूम या अक्सर तौर पे ये रात 27वीं की होती है, लेकिन अल्लाह ताला अगर चाहे तो इसे 29वीं की भी कर सकता है, 27वीं की भी तो होती ही है, अक्सर हम मनाते भी हैं, 25वीं की भी मुमकिन है, ताक रातों में से कोई एक। इसलिए ये कहा जाता है कि ताक रातों की इबादत को अपने ऊपर लाजिम करें, ताकि अगर कोई भी कदर की रात है तो उसे पा लेने में हमें कामयाबी हो जाए। और फिर बड़ी अहमियत की बात यह है कि इस ताक रात को कोई पा लेने में कामयाब हो जाए तो करे क्या। हदीस में आता है, मन कामा लैलतल कद्री ईमानो व एहतिसाबन कद गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। पहला काम यह है कि इस रात में क़याम करना है, और ये क़याम नमाज और तरावी और तहज्जुद की नमाज के अलावा होगा, क्योंकि ये क़याम तो बाकी दिनों में भी हम कर ही रहे हैं। तो वो क़याम ऐसा क़याम हो जिसमें तसलसल भी हो और एक लम्हा भी हम ज़ाया ना करें और क़याम में अपना वक्त गुजार दें। हम बिलअमूम क़याम करते हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद सस्ताते हैं, 12 बजे के बाद खड़े होते हैं क़याम करने के लिए और 2 बजे बैठ जाते हैं रोज़ा सहरी खाने के लिए। हालांकि मगरिब की नमाज के साथ ही, मगरिब के साथ ही ये कदर की रात तुलू हो जाती है। तो वो जो मगरिब से लेके इशा तक का वक्त है, जो बिलअमूम हम सस्ताने में गुजारते हैं, रोज़ा रखा हुआ है, अभी सहरी, अभी हमने इफ्तारी ली है और इफ्तारी लेने के बाद हम बैठे हैं, ज़रा थकावट है दूर कर लें, फिर इशा की पढ़ेंगे नमाज, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, नहीं, वो वाला कीमती वक्त है, बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा प्राइम टाइम है, और उसमें इंसान जितनी भी इबादत करना चाहिए इबादत कर ले। एक दुआ भी मनकूल है, दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ मनकूल है। हज़रत आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा गया कि आप इसको पढ़ें अगर कदर की रात पा लें। और एक आखिरी बात जो इस हवाले से करना चाहूँगा कि कदर की रात में इशा की नमाज और फजर की नमाज यानी हर ताक रात में लाजिम कर लें कि जमात से पढ़नी है। हदीस में आया है कि जो इशा की नमाज़ पढ़ता है जमात से, उसे आधी रात की इबादत का सवाब मिलता है, और जो फजर की नमाज़ पढ़ता है जमात से, उसे बकिया आधी रात की इबादत का सवाब मिल जाता है। गोया इन 2 नमाज़ों को जमात के साथ अदा करने से पूरी रात की इबादत का सवाब मिल जाएगा। और इस रात में माली इबादत भी कीजिए। आपने ज़कात निकालनी है तो इस रात में ज़कात निकाल लीजिए, सदका और खैरात करना है तो इस रात में दीजिए, ताकि उसका सवाब 1000 महीनों की रातों के सवाब के बराबर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जी इतना मुश्किल नहीं हमारा दीन, इतना मुश्किल नहीं नेकियां कमाना, इतना मुश्किल नहीं है अच्छे अमाल करना, बहुत आसान है। बस बात यह है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम समझ जाएं। अक्ल है लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो जनाब अगर हम समझ जाएं, सीख लें और उस पर अमल कर लें तो कामयाबी हमारी है, जीत हमारी है। और ये माह रमज़ान अगर हमने अल्लाह का दिल जीत लिया तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी बहुत 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 बेहतरीन हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद शहर रमज़ान में फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहें सिटी 42। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तहद चैनल बनना,
चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा।
मूवी तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते हैं। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। शहर रमज़ान में एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। जनाब हमारे साथ महबूब हमदानी साहब, मरगूब हमदानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा अब्दुल शकूर हकानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा एजाज़ हुसैन हैदरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी किचन में दो मलकाएँ भी आ गई हैं जो पता नहीं लड़ रही हैं या बातें कर रही हैं या एक दूसरे को विश कर रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके बच्चे? आप सुमेरा कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और मिशा आप भी ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? वेरी गुड वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है जी आज हमारे किचन में? आज चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई? चिकन कढ़ाई, नो लड़ाई, जस्ट कढ़ाई। हाँ ठीक है जी। फोटाइल का हमारा ये जो किचन सजा है जी हमारे शहर रमज़ान में, हमारे स्पॉन्सर हैं इस सेगमेंट के मिल्क पैक क्रीम, नेस्ले प्योर लाइफ, करशी जामिशरी, रोज़ पेटल और ओरी फ्लेम। अच्छा जो जीतेगा मलका के लिए वहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स भी पड़े हैं बट जी चांदी वालों की तरफ से। तो आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और जनाब आप करें लड़ाई, मेरा मतलब बनाएं चिकन कढ़ाई और हम आपसे करेंगे बातचीत। और बड़ा आसान सा तरीका है जनाब गिफ्ट जीतने के लिए। आपको पता है कि सवाल पूछे जाएंगे, जिसको सही जवाब आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा, खुद से जवाब देंगे तो वो नहीं माना जाएगा। आप सब तैयार हैं? सदके जाऊं, एडी इज्जत, इतना प्यार, इतना एहतराम कि सबने जी कह दिया, हाँ नहीं कहा। ये बड़ी अच्छी बात है। पहला सवाल करने लगा हूं जी। हाँ जी, इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे? इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे? दे दीजिए जी। इतना आसान सवाल मैंने किया किसी ने जी। हजरत बिलाल। बिल्कुल सही जवाब जी। तालियां बजाएं जी इनके लिए। और वो चांदनी वालों का जो गिफ्ट हैम्पर है वो इनको दे दीजिए जी। अगला सवाल करने लगा हूं आपसे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन का नाम क्या रखा था? हज़रत हसन तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम रखा था, लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम का नाम क्या रखा था? कौन बताएगा? ये मौलाना रागिब नईमी साहब ये सवाल लिख कर गए हैं कि ये पूछिएगा। आप बताओगे बेटा? माइक दीजिए। शबर। ना 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 ना, कोशिश करो, गेस करो, मैं चाह रहा हूँ आप ही जीतो। शबीर। नहीं। मुज्तबा। नहीं नहीं। अच्छा गेस का मतलब ये नहीं था कि सारे नाम ले लो। अच्छा जी, वो पीछे बच्ची आपको पता है बेटा? मुज्तबा। नहीं 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 नहीं, ये मिनल सऊदिया हज़ा सगीर कैफिल हाल या हबीबी। अयवा। हुसाम। नहीं बच्चे, सर मुश्किल सवाल कर लिया मैंने। ये मुश्किल सवाल है। बच्चों के लिहाज से मुश्किल है। बच्चों के लिहाज से मुश्किल है और बड़ों के लिहाज से कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं। हर्ब है सही जवाब। ठीक है जी, हर्ब इज द राइट आंसर। मुझे लगा आप में से किसी को नहीं पता इसलिए मैंने खुद ही बता दिया। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम बताएं। वो बच्ची, उसने बड़े जोश से हाथ। बेटा माइक तो आने देते यार, जज्बाती कौम। लियाकत अली खान। ऐ हुई ना गल। चलें जी, इसके लिए भी तालियां बजाएं जी। वर्क स्पेस वालों को गिफ्ट हैम्पर दें इनको। अच्छा जी, रकबे के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? इस तरह जवाब देगा जो उसको नहीं मानेंगे हम। ठीक है जी। ये अंकल जी, वो अंकल जी जो बैठे हैं, अंकल जी माइक ध्यान दो जी, फरमाएं। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लिए भी तालियां और अंकल जी के लिए भी तालियां। अंकल जी कौन सा गिफ्ट दें आपको? कौन सा गिफ्ट दें आपको? क्या पसंद आ रहा है? हैं जी? सारा कुछ?
अच्छा कुछ भी। चले अंकल जी को ये गुड ईयर और जियाफत का जो गिफ्ट हैम्पर है ये अंकल जी के लिए, ठीक है। अच्छा जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किस खातून ने की? वो आंटी जी को माइक दें वहां पर, जल्दी जल्दी, भाग कर। परवरिश तो फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने की, लेकिन दूध उनकी वालदा ने ही पिलाया, अल्लाह के हुक्म से, उसकी रजा से। ये उसका बहुत बड़ा मकसद है। बिल्कुल सही जी, तालियां बजाएं जी इनके लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया। और आपने जवाब बड़ी डिटेल में दी, इसलिए ओरी फ्लेम का जो गिफ्ट हैम्पर है ये बड़ी ज़बरदस्त जनाब, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन टाउन मेकअप का, और ये आपके लिए जी, ठीक है जी। अच्छा जी, बनी इसराइल के पैगंबर हजरत ईसा की पैदाइश कहाँ हुई? बनी इसराइल के पैगंबर हजरत ईसा की पैदाइश कहाँ हुई? आप बताएंगे? आप बताओगे बेटा? माइक दें। इसराइल? नहीं, मिस्र ये आपने भी जवाब सुना। सही जवाब है ना? मिस्र लिखा हुआ है यहाँ पे। बनी इसराइल के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई? मिस्र नहीं है सही आंसर। असल जगह का नाम तो बैतुल लहम, लेकिन हमने यहाँ पे अगर यानी पूछा है तो मिस्र भी कह सकते हैं ना, मिस्र में ही है ना। दे दे नाम देते, ठीक है जी, चलें जी, वेरी गुड, तालियां बजाएं जी इनके लिए। पोटाइल वालों का जो है गिफ्ट हैम्पर वो इनके लिए, ठीक है जी। पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में वजूद में आया और उस दिन इस्लामी तारीख क्या थी? इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। किससे पूछें यार? वो बच्ची जो दुपट्टा जिन्होंने लिया हुआ जी। रमजान का महीना था और 27 रमजान। तालियां होनी चाहिए जी, बहुत सारी तालियां। ये जी चांदनी वालों का गिफ्ट हैम्पर बच्ची के लिए भी। अच्छा जी, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताएं। ये हमारे क्विज में हो चुका है पहले भी, अगर आपने किसी ने देखा हो तो। अच्छा जी, सर आपकी मूछें बड़ी ज़बरदस्त हैं, इसलिए आपसे ही पूछेंगे जी, बताइए। जनरल अयूब। तो सिर्फ मूछें ही ज़बरदस्त हैं, जवाब ज़बरदस्त नहीं दिया आपने। अच्छा नहीं जी, सही जवाब नहीं है। ये बच्चे को दें, मुझे आपको आता है, माइक भी आपके पास आता है। कायदे आदम। अरे तालियां होनी चाहिए, क्या बात है जी। ये एक्सीलेंट वालों का गिफ्ट हैम्पर इनके लिए। अच्छा जी, अगला सवाल अलामा साहब आप फरमाएं। अगला सवाल आप करें, कोई आसान सा सवाल करें। चले वो सोच ले, मैं आप करें सर। आप ये बताएं, जिस हस्ती ने खाना काबा से बुत गिराए थे उसका क्या नाम है? हाँ जी, कौन जवाब देगा? ये बलोची टोपी वाला बच्चा जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फौजी। हज़रत अली ने और हज़रत मोहम्मद। क्या बात है जी, सही जवाब, जबरदस्त जी। इनके लिए ये चैनवन का गिफ्ट हैम्पर इनको दीजिए, ठीक है जी। अगला सवाल महबूब हमदानी साहब करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की रोटी ज़्यादा पसंद फरमाते थे? रोटी कौन सी पसंद फरमाते थे? कौन बताएगा जी? ठीक है। ये बेटा आप बताएं। ऊंचा बोलिए। जौ की रोटी। बिल्कुल सही जवाब है जी, माशाल्लाह जी। पोटाइल का गिफ्ट हैम्पर जो है वो इनके लिए भी। मरगूब साहब करेंगे अगला सवाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? हाँ जी, कौन बताएंगे? उस फैमिली से जिससे नहीं अभी तक पूछा, कोई वो फैमिली जिससे अभी तक नहीं पूछा। एक मिनट, सबसे पीछे माइक भेज दें। वो जो येलो शर्ट में बच्चा है सबसे पीछे, वो येलो शर्ट, जल्दी बताओ। फातिमा। बिल्कुल सही जवाब जी, तालियां बजाएं। और करशी जामी शरीफ का गिफ्ट हैम्पर इनके लिए। सर सवाल रेडी? जी, अलामा साहब सवाल करेंगे जी। बैतुल्लाह की छत पे खड़े होकर किस सहाबी ने अजान दी? अरे आपकी फैमिली से हो गया है। कौन सी फैमिली रह गई है जिससे नहीं अभी तक पूछा है जी? अच्छा अलग है। अच्छा, ये इनको दे दें। वो अभी सगे भी होते तो अलग कर देते आप, नहीं? हजरत बिलाल। बिल्कुल सही जवाब है जी। पोटाइल वालों का गिफ्ट हैम्पर इनके लिए भी। अच्छा जी अलामा साहब अगला सवाल। नमाज फजर की कितनी रकातें हैं? अरे वाह, बड़ा आसान और दिलचस्प सवाल। नमाज फजर की कितनी रकातें हैं? कौन? नहीं बताना नहीं है, माइक आएगा तो फिर बताना है, ऐसे नहीं खुद बताना। अच्छा, इधर भी तो माइक भेजे ना यार, इधर भी तो माइक भेजें। वो भेजे, वो पीछे जो सबसे पीछे कॉर्नर पे, वो पीछे सबसे पीछे माइक दे दीजिए।
وہ جی آپ 4 رکھتے ہیں. بتائیے. 4 رکعتیں 2 سنت 2 فرض. 2 سنت 2 فرض. تالیاں ہونی چاہیے جی کرچی جامع شریف کا گفٹ ہیمپر ان کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور سوال کریں؟ اچھا جی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایسے تھوڑی بتاتے ہیں. بولتے ہیں ہمارا ملک ہے. پاکستان کے لیے نعرہ کیا لگائیں گے؟ پاکستان پاکستان. کیا بات ہے, یہ ہوئی نا اسپرٹ. اب سوال بلال صاحب. جی سر. آگے یہ بھی بتائیں نا ان کو, پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جناب اسی خوبصورت نعرے کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے شہر رمضان میں ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں سٹی 42. لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں. باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ, ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم, مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی, دفتری معاملات میں گڑبڑ, کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222. تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص, اور بن جائیے سٹی رپورٹر. خبریں, تقریریں اور باتیں, ہنسنا کھیلنا, ملنا جلنا, آنا جانا, رنگ برنگے لمحے, گیت, گھٹائیں, برساتیں, نہر کنارہ, راوی کا پل, مال, مساجد, محل, مینارے, درویشوں کی رونق, کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں, شہر کہانی, آتے جاتے قصے, گلیاں, باتیں کرتے دن اور راتیں, سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے. ہم اس کی آواز ہیں, اس کی خوشبو ہیں. یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42. لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر. برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز. سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال, حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں, ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر. ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام, ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی. ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال. ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی. ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ. ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر. ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم. ہم ہیں سٹی 42. ہم ہیں لاہور. جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے, جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن. کیا ہے ہمارے تباہ کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار, لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر. صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے.
आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है। सिटी क्लिनिक, शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। डीसी सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का शहर रमज़ान में एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। खैर से आज 26वां रोज़ा है और इफ्तारी के बाद 27वीं की रात शुरू हो जाएगी। जनाब आज उसी की अहमियत, उसी की फजीलत बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अब्दुल शकूर हकानी साहब, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा एजाज़ हुसैन हैदरी साहब, महबूब हमदानी साहब, मरगूब हमदानी साहब, हमारे लेजेंड्स भी हमारे साथ हैं और हमें यकीन है कि आप सभी हमारे साथ हैं। हकानी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप बयान फरमाएँ आज जो 27वीं की रात है उसकी अहमियत, उसकी फजीलत। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ताक रातों में कोई रात भी लैलतुल क़द्र हो सकती है, लेकिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा कि आपकी नज़र में कौन सी ताक रात है जिसको आप लैलतुल क़द्र समझते हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि मेरी नज़र में 27वीं है। तो आपने पूछा भाई वो कैसे? फरमाया इसमें 7 का हिंसा आता है। अल्लाह ने आसमान 7 बनाए हैं, ज़मीनें 7 बनाई हैं और बच्चा माँ के पेट में जो परवरिश पाता है वो 7 मराहिल से गुज़रता है। और कुरान करीम में इंसान के रिज़्क़ का जहाँ ज़िक्र आया वो भी 7 किस्म का रिज़्क़ आया है। मतलब कि जो 7 का हिस्सा है ना, इससे मैंने ये इज्तिहाद किया है कि लैलतुल क़द्र 27वीं को होगी। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की राय है। बड़ी खूबसूरत लेकिन सोच और बड़ी प्यारी बात। इसी तरह हमारे मुआशरे में एक चीज़ जो पाई जाती है कि जी लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। जी, तलाश करने का मतलब हमारे बहुत सारे लोग अब टेलीफोन पे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं आज लैलतुल क़द्र तो नहीं, कोई निशानी नज़र आई, बस सारी रात ये पूछते पछाते गुजार देते हैं। तलाश करने का मतलब ये नहीं है, तलाश करने का मतलब इबादत है जी, कि आप इबादत कीजिए जी। और जो इंसान 5 रातें जो ताक हैं उनमें इबादत कर लेगा तो कोई तो लैलतुल क़द्र होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सारी रात इबादत करता रहे, अल्लाह पाक उसको लैलतुल क़द्र का सवाब अता फरमा देंगे। अल्लामा साहब, वो हमारी ऑडियंस में से एक अंकल थे, उन्होंने भी यही सवाल किया जी कैसे हमें पता चले कि लैलतुल क़द्र हमने हासिल की, यानी कैसे वो सुकून मिले, कैसे वो तसल्ली मिले? तो सिंपल सी बात है कि 5 ताक रातें हैं, आप इबादत करें, आप यकीन रखेंगे आपको लैलतुल क़द्र मिल जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बता दिया था कि फ़लाँ रात लैलतुल क़द्र होगी। आप घर से तशरीफ़ लाए जी कि मैं जाके सहाबा को बताता हूँ। जी। तो रास्ते में 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लड़ाई में जो मगन हुए, उनको सुलह कराते कराते तो आपके ज़हन से वो रात भूल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने लैलतुल क़द्र की तायीन कर दी थी, लेकिन तुम्हारी आपस की लड़ाई की वजह से वो तायीन उठा ली गई। तो आपस की लड़ाई इतना नुकसानदेह होती है कि इससे इंसान बहुत बड़ी खैर से महरूम हो जाता है। बिल्कुल सही फरमाया। और आज हमें चाहिए कि हम आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म करें, आपस में सुलह करें, प्यार मोहब्बत से रहें और भाइयों की तरह रहें। एक हदीस पाक के अल्फाज ये हैं कि आपस की लड़ाई दीन को यूँ ख़त्म कर देती है जैसे उस तरह सर के बालों को ख़त्म कर देता है। जिस तरह उस तरह से बाल साफ़ हो जाते हैं, यूँ आपस की लड़ाइयों से दीन साफ़ हो जाता है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म करके सुलह जोई के साथ रहें, सुलह सफ़ाई के साथ रहें और 27वीं की रात को इबादत करें। अभी जैसे अल्लामा राग़िब साहब फरमा रहे थे कि अगर आप इबादत नहीं कर सकते, ये फ़र्ज़ नहीं है, अगर हिम्मत है, सेहत इजाज़त देती है तो आप जागें, इबादत करें। लेकिन अगर सेहत इजाज़त नहीं देती, हिम्मत नहीं है,
تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کتنی آسانی بھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سلمان ایک صحابی ہیں، حضرت سلمان، کہ وہ فجر کی نماز میں نہیں ہیں۔ تو آپ کا جب ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دروازے پہ دستک دی تو ان کی والدہ نکلی، پوچھا کہ آج سلمان فجر کی نماز میں نہیں تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو والدہ نے کہا ساری رات نفل پڑھتے رہے، صبح نیند کا غلبہ تھا تو اپنی نماز پڑھ کے سو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ساری رات سوتا رہوں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں، میرے نزدیک ساری رات کے نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر ہے، بالکل ٹھیک۔ اور عموماً ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ساری رات عبادت ہو رہی ہے، جاگ رہے ہیں اور سحری کھا کے نیند چڑھی، جماعت چھوڑ دی اور سو گئے۔ تھوڑی سی احتیاط کریں، جماعت سے نماز پڑھیں۔ میں یہاں پر ایک بات اور اپنے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم نے نفل پڑھنے ہیں، جی، پھر صبح کو باتیں کرتے ہیں، جی میں نے 100 پڑھے، کوئی کہتا ہے میں نے 200 پڑھے، کوئی کہتا ہے میں 400 پڑھے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، فرض نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر ہماری فرض نمازیں قضا ہوئی ہیں، رہتی ہیں، پہلے ہم ان کو پڑھیں۔ صحیح، صحیح۔ اگر ہماری فرض نمازیں کمپلیٹ ہیں، کوئی ہماری رہتی نہیں ہے، تو آپ نفل پڑھیں، شوق سے پڑھیں۔ لیکن ہمارا مزاج یہ بنا ہے کہ نفل پڑھیں گے، فرض نماز کی قضا نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نوافل پہ کہتے ہیں کہ جی آج ہم نے 10 نفل مانگ لیے، 10 نفل پڑھ لیے، 20 نفل پڑھ لیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں، جو ہماری نمازیں ہم ان کے قضا فرائض جو ہیں، فرض جو ہیں، اس نیت سے پڑھ لیں کہ یہ اگر میری فجر کی جو قضا، بہت اچھی بات ہے۔ جتنی نمازیں ہماری قضا ہیں، دیکھیں اس کی معافی نہیں ہے جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے۔ بالکل، ادا کرنا شروع کر دیں۔ اب ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ مجھے نہیں پتا کتنی ہے، اندازہ لگا لیں، اندازہ لگا کے لکھ لیں کہ میری اتنی فجر کی قضا ہے، اتنی ظہر کی ہے، اتنی عصر کی ہے، اتنی مغرب کی، اتنی عشاء کی۔ ٹارگٹ مل جاتا ہے، ایک پڑھنا شروع کر دیں۔ اور سر اگر ہم نماز تسبیح کی بات کریں اور آج کی رات جو اتنی فضائل ہیں، اتنی اہمیت ہے، کوئی خاص اس میں عبادت کا اگر ہم آپ جی دیکھیں، صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اپنے چچا حضرت عباس کو آپ نے یہ سکھائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صلاۃ التسبیح ایسی، لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا، یہ صلاۃ التسبیح وہ پڑھیں جن کی فرض نمازیں مکمل ہیں۔ پہلے فرض نمازیں تو مکمل کریں۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں، جیسے میٹرک میں، آرٹس میں بچے کچھ اختیاری مضامین رکھتے ہیں، جی جی، کسی نے پنجابی رکھ لی، کسی نے عربی رکھ لی، کسی نے کوئی اور مضمون رکھ لیا۔ اب دیکھیے اس میں اردو ہے، انگلش ہے، اسلامیات لازمی ہے، پاکستان سٹڈیز ہے، یہ لازمی مضامین ہیں۔ اب ایک بچہ اختیاری مضامین میں تو پاس ہو رہا ہے لیکن لازمی مضامین میں فیل ہو رہا ہے، تو کیا ایجوکیشن بورڈ اس کو سند دے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا جو لازمی مضامین ہے پہلے اس کو پاس کرو، پھر آپ کو سند ملے گی۔ آپ نے بہت ہمارا حال یہی بنا پڑا ہے، لازمی مضامین میں ہم فیل ہیں اور جو نوافل ہیں اس میں ہم بہت آگے جا رہے ہیں۔ بھائی پہلے فرض نمازیں جو ہیں ان کو آپ مکمل کریں، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ علامہ اعجاز حسین حیدری صاحب، آپ نے ابھی ہم بریک پہ بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ تصویر جو ہے وہ کن کی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ جی میجر سجاد حیدر شہید۔ تو آپ نے کہا کہ آج ہم شہیدوں پر بھی گفتگو کریں گے اور ان پہ بھی بات چیت کریں گے، اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم تفصیل سے آپ کی بات جو ہے شہیدوں کے حوالے سے جو آپ بیان فرمائیں گے وہ ضرور سنیں گے۔ ابھی میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ ہم سب مل کر میجر سجاد حیدر شہید جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ان کے گھر والوں کے لیے ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ریئل ہیروز ہیں۔ ایک مرتبہ تالیاں ہونی چاہیے ہمارے شہیدوں کے لیے۔ اور سچ بتاؤں یہی ہمارے ریئل ہیروز ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں کن کو اپنا ہیروز سمجھ لیا، لیکن اصل میں یہی ہمارے ہیروز ہیں جو اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ آج ان کے دونوں بیٹے بھی یہاں پر جی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے۔ ان سے ہم ایک ملی نغمہ بھی سنیں گے۔ ابھی ایک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ شہر رمضان میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیں City 42۔